Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So students, today we will study the partial derivatives of vectors. So let r vector be r vector is equal to f vector into x, y, z. That is, r vector is basically a function of three variables x, y, and z. Then the partial derivative of this r vector with respect to x is defined as del by del x of this r vector, because we are taking the partial derivative of this vector r with respect to x, and this is equal to the limit delta x approaches to 0 f vector into x plus delta x, then y and z, minus f vector into x, y, z whole divided by delta x. Similarly, for the partial derivative of r with respect to y, this is equal to, instead of delta x, we have to change it with delta y. So delta y approaches to 0, then a function that is f vector f x comma y plus delta y, now increment is in y, and z minus f vector of x, y, z whole divided by delta y. Similarly, for the partial derivative of r with respect to z, we have to add the increment in z term, and other quantities are same like previous one. So f vector into xy into f vector of x, y, z plus delta z minus f vector into x, y, z whole divided by delta z. So now first note is that if r vector is equal to f1 x, y, z I into unit vector I, then f2 of this into unit vector j, similarly plus f3 of this into unit vector k, then del by partial derivative of r with respect to x is given by partial derivative of f1 with respect to x into unit vector I, then plus partial derivative of f2 divide with respect to x into unit vector j, then partial derivative of f3 with respect to x into k, unit vector k. Similarly, for y, instead of x, we have to change to it to y, and similarly for z, and we have to take the partial derivative of r with respect to z is equal to partial derivative of f1 with respect to z into unit vector I plus partial derivative of f2 with respect to z into unit vector j plus partial derivative of f3 with respect to z into unit vector k. So next is the chain rule. So chain rule, if r is a function of the variables x and y having partial derivatives with respect to x and x and y have derivatives with respect to t, then we will use this property, and this property is known as chain rule. So means अगर हमारे पास r जो है वो फंक्शन है एक्स वाई का, और उसके जो उसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है वो किसके विथ रिस्पेक्ट टू है हमारे पास, हैविंग द पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, और जो ये एक्स वाई है उनके जो डेरिवेटिव्स है वो किसके विथ रिस्पेक्ट टू है, टी के विथ रिस्पेक्ट टू है. तो देन हमारे पास चेन रूल क्या कहता है कि दैट डी बाई डी टी of this r vector means derivative of r vector with respect to t, this is equal to partial derivative of r vector with respect to x into total derivative of x with respect to t plus the partial derivative of r vector with respect to y into total derivative of y with respect to t. So note 3 gives that rules for partial differentiation of vectors are same as those of the ordinary differentiation of scalar function. Note 4 says that higher order partial derivatives are given as, so ये जैसे हमने previous partial derivatives में पढ़ा था ये सेम वही है, सिर्फ आपने क्या करना है, जहाँ पे वेक्टर है आपको जस्ट वेक्टर का डायरेक्शन जो मीन्स है दैट इज दिस सिंबल ये आपको लगाना है, बाकी वो सब सेम ही है. सो अगर हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होगा इस वेक्टर का, तो मीन्स ये क्या हुआ कि डेल आर वेक्टर बाई जो डेल एक्स होगा, मीन्स इसका जो डेरिवेटिव जो आर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लेंगे उसको अगेन हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. सिमिलरली डेल टू आर बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विथ रेस्पेक्ट टू वाई, और इसका डेरिवेटिव किसके साथ लेना है, अगेन विथ रेस्पेक्ट टू वाई. सो नोट 5 में हमारे पास है कि जो ये क्वांटिटी है ये आपस में इक्वल होती है प्रोवाइडेड आर वेक्टर हैज़ कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर.
last note is that total derivative, yeah, or we can say total differential dr vector of r is given by, so total differential किस तरीके से हम उसको लिखते हैं, dr vector this is equal to partial derivative of r vector with respect to x into dx plus partial derivative of r vector with respect to y into dy, then partial derivative of r vector with respect to z into dz. so ये सब कुछ ये टर्म्स थी जो कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स में यूज़ होती है. सो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर्स पे किस टाइप की एग्जांपल्स हो सकती है और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इफ फी ऑफ एक्स वाई जेड दिस इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड एंड एफ वेक्टर इज गिवन बाय दिस टर्म, then we have to show that partial derivative, that is del cube by del x square del z of phi into f vector at this point is this, means आंसर ये आना चाहिए. सो इस पॉइंट पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. तो ये बहुत सिंपल है. सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास क्या गिवन है. सो आई विल राइट हियर फी ऑफ एक्स, और फ़ी कितना दिया है मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ. अभी एक्स वाई जेड बार बार नहीं लिखती हूँ. फ़ी कितना दिया हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर जेड. तो ये मतलब यही हुआ कि ये फंक्शन है इन तीन वेरिएबल्स का. सिमिलरली जो हमारे पास एफ वेक्टर है वो कितना दिया हुआ है, एक्स जेड इंटू यूनिट वेक्टर आई माइनस एक्स वाई इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस वाई जेड स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर के. सो ये हमारे पास गिवन है. अब हमने क्या निकालना है, अब हमने इसमें पहले हमने देखना है हमें क्या निकालना है. पहले हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, मीन्स फी और एफ का प्रोडक्ट निकालना है. ये हमें देखना है कि जो वैल्यूज़ निकालनी है उसमें सबसे पहली टर्म क्या निकाल, दैट इज़ फी और एफ का प्रोडक्ट निकालना है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फी वेक्ट इंटू एफ वेक्टर दिस इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू जेड देन इंटू एक्स जेड यूनिट वेक्टर आई माइनस एक्स वाई इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस वाई जेड स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर के. सो इनको सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, then it will become y square, then it will become z square into unit vector I, then minus times x square, then y cube, then z into unit vector j, then plus ये आ जाएगा x into y cube, then it will be z cube इंटू यूनिट वेक्टर के. सो ये हमारे पास फी एफ भी आ गया वेक्टर. अब हमने क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे. तो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव हमें पहले विथ रेस्पेक्ट टू जेड निकालना है. सो हम लिखेंगे डेल जेड बाई डेल जेड ऑफ फी ऑफ एफ दिस इज इक्वल टू, अब जब हम इस टर्म को मीन्स इक्वेशन नंबर 1 को हमने जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू जेड, तो मीन्स एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, वो कॉन्स्टेंट हो जाएंगे. सो यहाँ पे हम अब जब z के साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा और z का हो जाएगा 2z. साथ में आएगा आपके पास यूनिट वेक्टर i. सिमिलरली ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई क्यूब हो जाएगा, z की पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा. सो यहाँ पे ये सिंपल इतना ही आएगा. देन प्लस इधर से हो जाएगा x इंटू वाई क्यूब, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, सिर्फ z के साथ करना है. तो ये हो गया 3z स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर के. सो ये टर्म्स आ गई हमारे पास. अब हमने क्या करना है, इसके बाद इस टर्म को, क्योंकि हमें ये जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को हमने पहले हमने z के साथ कर लिया. अब इसमें सेकंड ऑर्डर भी है, मींस इसमें अभी अब x के साथ हम इसका पहले डेरिवेटिव एक निकालेंगे, फिर उसके बाद फिर से अगेन उसको x के साथ डेरिवेटिव निकालेंगे. तो यहाँ पे अब मैं लिख लेती हूँ नाउ डेल बाई डेल x ऑफ किसका निकालना है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड का. सो मैं सीधा लिख लेती हूँ डेल z ऑफ फी ऑफ एफ वेक्टर. सो दिस इज इक्वल टू, अब मीन्स x के साथ करना है तो y और z क्या हो जाएंगे, वो कांस्टेंट हो जाएंगे. तो डायरेक्टली यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, x के साथ करना है हमने. सो इट विल बिकम 2x. तो ये 2x आएगा और ये 2, ये हो जाएगा 4x. तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 4x इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड, ये हो गया i. देन ये आ जाएगा 2x इंटू वाई क्यूब इंटू जे. देन अदर टर्म विल बी x की डेरिवेटिव करेंगे वो 1 हो जाएगा, तो वाई क्यूब ऐसे लिख देती हूँ 3y क्यूब इंटू जेड स्क्वायर
इंटू यूनिट वेक्टर के। सो ये भी हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसी टर्म को किसके साथ अगेन पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, अगेन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो मैं लिखूंगी डेल बाई डेल एक्स, फिर देन अगेन डेल बाई डेल एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी, दैट इज डेल बाई डेल जेड ऑफ फी ऑफ एफ वेक्टर। सो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अब हमने x के साथ करना है तो y और z कांस्टेंट है, मीन्स इक्वेशन नंबर 3 को हम अगेन विथ रेस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x के साथ। सो जब x के साथ होगा तो वैल्यू आ जाएगी, अब सो यहाँ से हो जाएगा इसकी वैल्यू 4 टाइम्स वाई स्क्वायर इंटू जेड, क्योंकि x का पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इंटू वाई माइनस ये हो जाएगा x का 1 हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स वाई क्यूब इंटू जे, और यहाँ पे हमारे पास x की टर्म है नहीं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो इन शॉर्ट हमारे पास ये टर्म आ गई, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, सो विच इज़ इक्वल टू, सो ऐसे लिख सकते हैं हम डेल क्यूब, ये हो गया डेल क्यूब डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वेयर इंटू डेल जेड ऑफ फी वेक्टर, फी इंटू एफ वेक्टर, फी इंटू एफ वेक्टर, दिस इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 4y स्क्वेयर जेड इंटू आई, देन माइनस 2y क्यूब इंटू जे। अब हमने क्या करना है, एट किस पॉइंट पे निकालना है वैल्यू इसकी, 2, -1 और 1 पे। सो हम डायरेक्टली लिखेंगे देयरफॉर एट 2, -1 एंड 1 वी हैव, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे एक्स वाई की जगह पे ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, सो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा मेरे पास, मैं इधर वैल्यू पुट कर देती हूँ 4 इंटू -1 का स्क्वायर और z की जगह पे क्या है 1, देन माइनस इंटू ये हमारे पास हो गया साथ में इंटू यूनिट वेक्टर i, -2 इंटू वाई की जगह पे कितना है -1, सो -1 का क्यूब इंटू जे। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, ये हो गया 4i, it will become 4i and it will become plus 2j, so which is the आंसर। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, जस्ट पार्शियल डेरिवेटिव निकालें, और जिसके साथ हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो उसके आगे जो अदर वेरिएबल्स होंगे उनको आपको कांस्टेंट रखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ ए वेक्टर जो है वो हमारे पास ये गिवन है, बी वेक्टर ये दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए वेक्टर हमारे पास क्या गिवन है, इट इज़ एक्स स्क्वेयर आई इंटू यूनिट वेक्टर आई, वाई स्क्वेयर जे, देन z स्क्वेयर इंटू यूनिट वेक्टर k। सिमिलरली b भी हमारे पास गिवन है, दिस इज y z इंटू यूनिट वेक्टर i प्लस z x इंटू यूनिट वेक्टर j प्लस x y इंटू यूनिट वेक्टर k। सबसे पहले हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, तो मीन्स इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, और वो कैसे निकाला जाता है, थ्रू डिटर्मिनेंट से। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे आई, देन इट इज़ जे, देन इट इज़ के, एंड ये हमारे पास आ गया साथ में इसके कोफिशिएंट्स। सो इसके कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, इधर से आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर, यहाँ से आएगा वाई स्क्वेयर, देन जेड स्क्वेयर, ये हो जाएगा वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई। अब हम इसको मल्टीपल दे देते हैं, सो यहाँ से हमारे पास टर्म बन जाएगी, दिस विल बी आई वेक्टर इंटू ये हो जाएगा x इंटू वाई क्यूब, माइनस ये हो जाएगा यहाँ से ये टर्म आ जाएगी x इंटू वाई क्यूब इंटू दिस, मीन्स इसको इसके साथ मल्टीपल देना है और इसको इसके साथ मल्टीपल देना है। सो ये आ जाएगा इंटू जेड क्यूब, साथ में आ गया x, देन सब्ट्रैक्शन अदर टर्म विल बी, इस टर्म को j को छोड़ देंगे और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वाई हो जाएगा एक्स क्यूब वाई, माइनस अदर टर्म विल बी जेड क्यूब वाई, सो और आई विल राइट वाई इंटू जेड क्यूब, साथ में जे आ गया, एंड लास्ट टर्म विल बी प्लस के में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू जेड एक्स करना है, तो दैट इज़ एक्स क्यूब जेड, और माइनस आ जाएगा z इंटू वाई क्यूब, ये टर्म आ गई। सो यहाँ से हम इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व और कर लेते हैं, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इस वाली इक्वेशन से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, तो मैं x कॉमन ले लेती हूँ। सो x इंटू ये हो जाएगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इंटू आई यूनिट वेक्टर आई। सिमिलरली सेकेंड टर्म से y कॉमन आएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस जेड क्यूब इंटू जे
एंड थर्ड टर्म से हमारे पास z कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू के। और इसको 2 बार लिख दिया मैंने, बेसिकली इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ। सो प्लस z कॉमन ले लिया और ये टर्म हमारे पास आ गई। ये हमारे पास टर्म आ गई, तो मीन्स हमारे पास ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अब हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो हम फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू हमें पता है अगर इस टाइप का टर्म दिए तो पहले हमें y के साथ उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना, उसके बाद उसको x के साथ डेरिवेटिव निकालना है। सो आई विल राइट डेल बाई del y ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सो मीन्स y के साथ कर रहे हैं, तो मीन्स नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट को कर रहे हैं। सो यहाँ से हमारे पास जो अदर टर्म्स होंगी, मगर y के साथ कर रहे हैं तो मतलब x और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सो इस केस में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 3y स्क्वेयर, 3y स्क्वेयर, इसको x से जब मल्टीपल करेंगे तो साथ में x आएगा, और अदर टर्म में क्योंकि y नहीं है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो 0 हो जाएगा। देन माइनस अगली टर्म में हो जाएगा, y के साथ है तो ये हो जाएगा x क्यूब ओनली, x क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी y है तो ये आ जाएगा माइनस z क्यूब, और मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ z क्यूब माइनस एक्स क्यूब, वो सिंपल हो जाएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा इन शॉर्ट z क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस क्योंकि मैं माइनस साइन भी पहले ही आउट कर दिया। सो इनटू जे वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, देन लास्ट टर्म विल बी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास खाली ये टर्म में y नहीं है, खाली इस टर्म में, तो ये बन जाएगा माइनस टाइम्स z इंटू 3y स्क्वेयर इंटू यूनिट वेक्टर k। सो मोर सिंप्लीफाइंग इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3xy स्क्वेयर इंटू आई वेक्टर, प्लस ये बन गया z क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू यूनिट वेक्टर j, देन माइनस 3 टाइम्स z y स्क्वेयर k। अब हमने इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर सेकेंड को फर्दर इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। सो आई विल टेक अगेन द पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू अब x लेना है। सो आई विल टेक डेल स्क्वायर ऑफ दिस टर्म ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस इज़ इक्वल टू, अब हमें जब x के साथ करना है तो मीन्स अब हमने y और जो z होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या करना है, x के साथ वैल्यू बन जाएगी 3y स्क्वेयर इंटू आई, और यहाँ से हमें z के साथ x और के साथ करना है तो ये बन जाएगा माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वेयर इंटू जे, और इस टर्म में x नहीं है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। सो दिस इज़ द आंसर। सो इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो थैंक यू।